Good morning to all. Today we are starting a new chapter that is called statistical inference hypothesis testing for a single population. This is today we are discussing about theories of hypothesis, but theory is very important as far as sum is concerned. If you want to understand the sum, you need to understand the theory, because at the time of sum you need to identify the some difference between the acceptance region, rejection region and all, null hypothesis and alternative hypothesis. So it is very important to understand the theory of hypothesis. So today we are just discussing about the theory, and that is very important for exam as well as some for some purpose. Clear? So first of all, let's start with the hypothesis. What is hypothesis? मैं बीच में अगर बोलूं तो if you want to write, you can write in your notebook. Here, that's why I told you to keep book with you. Clear? Now, a hypothesis is a claim or it's an assumption about a population parameter. These assumptions may or may not be true. Clear? Now what is hypothesis? Hypothesis means it's a assumption for population parameter. Now first of all, what is population parameter? Clear? Write down what is population parameter. So mu, that is, write down mu, that is population mean. P, capital P, that is population proportion. And sigma square, that is population standard deviation. Again I am repeating, which are the population parameter. What is population parameter? तो population को identify करने के लिए जो हम use करते हैं, population को identify करने के लिए हम जो use करते हैं, that is called population parameter. Again I am repeating, which are the population parameter? Mu, that is population mean. P, capital P, that is population proportion, and sigma square, that is population variance. So these three are the population parameter. और हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर का ही बनता है. मतलब हम जो सम करने वाले हैं वो म्यू का हाइपोथेसिस हो सकता है, मतलब म्यू के हाइपोथेसिस समझेंगे, प्रपोर्शन के हाइपोथेसिस समझेंगे, एंड सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस के हाइपोथेसिस समझेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, hypothesis is a assumption for population parameter. hypothesis population parameter के लिए क्या है? assumption है. क्लियर? हम अज्यूम करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स. आई विल डिस्कस विथ एन एग्जांपल, बट अभी समझ लेते हैं. सो हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर का ही होता है. मतलब हाइपोथेसिस म्यू का हो सकता है, पी का हो सकता है और सिग्मा स्क्वायर का हो सकता है. कभी भी हाइपोथेसिस सैंपल डेटा का नहीं होता है. कभी हाइपोथेसिस सैंपल डेटा का नहीं बना सकते. सैंपल डेटा मींस एक्स बार. एक्स बार मींस व्हाट? सैंपल मीन. एक्स बार मींस व्हाट? सैंपल मीन. तो कभी एक्स बार का हाइपोथेसिस नहीं बनता है. फिर एक पीकेप, अगर आपको याद हो तो पीकेप, पीकेप हमने सैंपल साइज में पढ़ा था. पीकेप, तो पीकेप क्या होता है? तो पीकेप होता है सैंपल प्रोपोर्शन, और एस स्क्वायर, एस स्क्वायर उसको बोलते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. फिर से समझाता हूं. x bar, that is sample mean. P cap, that is sample proportion, and s square, that is sample variance. ठीक है? इसका कभी हाइपोथेसिस नहीं होता है. हमेशा हाइपोथेसिस पॉपुलेशन पैरामीटर का ही होता है. ठीक है? मींस म्यू का, पी का या सिग्मा स्क्वायर, ये तीनों का ही हाइपोथेसिस बन सकता है इन अवर सिलेबस. क्लियर? ये तीन टाइप के हाइपोथेसिस बनाने होते हैं. नाउ तो सिंपल वे, हाइपोथेसिस इज अ अजम्पशन फॉर अ पॉपुलेशन पैरामीटर. ठीक है? अभी मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये जो हाइपोथेसिस है बेसिकली ये कैसे बनाते हैं, हाउ टू फ्रेम द हाइपोथेसिस, और कैसे होता है. सो basically there are two type of hypothesis. Write down, there are two type of hypothesis, H0 and H1. H0 means null hypothesis and H1 means alternative hypothesis. Clear? H0 means null hypothesis and H1 means alternative hypothesis. What is H0 null hypothesis? Write down, H0 is equal to a hypothesis that researcher known
H0, that is null hypothesis, is a hypothesis that researcher already known or already proved. Again, I'm repeating third time. Null hypothesis is a hypothesis that already proved or already researcher known. Now H1, what is alternative hypothesis? Alternative hypothesis means that researcher want to prove. Again, I'm repeating, H1 alternative hypothesis is a hypothesis which a researcher want to prove. जो researcher prove करना चाहता है वो H1 में रखेगा और जो उसको पहले से ऑलरेडी पता है वो उसको H0 बनाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, H0 मतलब जो उसको ऑलरेडी पता है वो H0 है और H1 मतलब जो उसको प्रूव करना चाहता है. हम थोड़ा फटाफट जाएंगे. नाउ एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ऐसा डेटा पब्लिश हुआ कि पूरे इंडिया में 70% यूथ हैव अ मोबाइल फोन. 70% यूथ हैव अ मोबाइल फोन. ऐसा डेटा पब्लिश हुआ है कहीं पर पेपर में या कहीं इंटरनेट पर. ठीक है. नाउ हमको कड़ी में ऐसा कोई सर्वे किया है हमने कि हमने मोबाइल फोन पे कोई सर्वे किया है कड़ी में और हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई कड़ी में सेम सिनारियो है कि नहीं. अभी समझो इंडिया में कितना यूथ मोबाइल फोन यूज करते हैं 70%. तो हमारा नल हाइपोथेसिस हुआ जो हम जानते हैं. अभी 70% मतलब पी हुआ. ये प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस है भाई. परसेंटेज है तो प्रपोर्शन आएगा ना 70%. तो 70% मतलब पी. नल हाइपोथेसिस समझो H0. H0 is equal to P is equal to 0.70. मतलब 70% people in India have a cellular phone. ये हम ऑलरेडी जानते हैं रिसर्चर. हम मतलब रिसर्चर, तो इसलिए हमने इसको नल हाइपोथेसिस में रखा है. नाउ व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? अभी H1 तो H1 क्या बनेगा? P. ध्यान से देखना, नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल टू होता है. नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल टू ही होता है. मतलब P इक्वल टू 0.70. चलो H1 क्या बन सकता है? अगर रिसर्चर को लग रहा है कि भाई कड़ी में 70% लोगों के पास सेलुलर फोन नहीं है, उसको प्रूव करना है. नहीं तो वो क्या लिखेगा पता है अल्टरनेटिव में? P नॉट इक्वल टू 0.70%. अगर उसको लग रहा है कि भाई 70% से कड़ी में तो ज्यादा है तो P ग्रेटर देन 0.70, और उसको लग रहा है कि 70% से कड़ी में तो कम है, ऐसा प्रूव करना है, तो P लेस देन 0.70. मतलब नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल टू होता है एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 हो सकते हैं. नॉट इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन. ठीक है. चलो ये तो प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस बना. प्रपोर्शन का क्यों बना? क्योंकि ये परसेंटेज है. अभी नीचे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है पॉपुलेशन मीन का. द मीन मंथली सेल फोन बिल ऑफ दिस सिटीज म्यू $42 डॉलर में है. ठीक है. अभी रुपीज समझ लेते हैं. देखो नल हाइपोथेसिस इक्वल टू है अल्टर्न, जो यहाँ पर भी और एक नल हाइपोथेसिस है P इज इक्वल टू 0.68. सेल वो था ना कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है. क्लियर. तो नल हाइपोथेसिस देखो म्यू का हो सकता है, P का हो सकता है और वैसे ही वेरिएंस का होता है सिग्मा स्क्वायर का. क्लियर. तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जो we are assuming about the population parameter. We are doing assumption about the population parameter. ठीक है. क्यों? वो समझता है. फिर ये समझ लिए कि दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव. व्हाट इज नल? H0 दैट रिसर्चर ऑलरेडी नोन और रिसर्चर ऑलरेडी कहीं पर प्रूव हो चुका है, उसको नल बोलते हैं. और व्हाट इज H1 अल्टरनेटिव? जो रिसर्चर प्रूव करना चाहता है उसको अल्टरनेटिव बोलते हैं. चलो एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा दूं. हाइपोथेसिस क्यों करते हैं पहले तो. ठीक है. देखो जनरली हम जो सर्वे करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं वो सैंपल बेस होता है. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखो, अगर हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, आई होप यू नो व्हाट इज पॉपुलेशन स्टडी. अगर हम पूरे पॉपुलेशन को चेक करते हैं, मतलब पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, तो हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है. वहां पे हाइपोथेसिस करना ही नहीं चाहिए, गलत है वो. तो फिर कब करते हैं हाइपोथेसिस? जब हम सैंपल सर्वे करते हैं, सैंपल डेटा लेते हैं. क्या लेते हैं हम? सैंपल डेटा. तो जनरली वी आर डूइंग द रिसर्च ऑन द बेस ऑफ सैंपल ना. सो जब हम सैंपल लेते हैं, सपोज कड़ी में हमने कोई सर्वे किया और कड़ी में से हमने 1000 पीपल का सैंपल लिया. वो जो सैंपल लिया और जो डेटा कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड सैंपल सर्वे. ठीक है. अभी हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं पता है? वो ये प्रूव करने के लिए बनाते हैं कि हमने जो सैंपल डेटा लिया है वो पॉपुलेशन के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है.
आपको पता है सैंपल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि सैंपल कैसा होना चाहिए, तो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, मतलब सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन जैसा हो, पॉपुलेशन से अलग थोड़ी सैंपल हो सकता है। तो हाइपोथेसिस हम क्यों करते हैं, तो हम ये प्रूव करने के लिए करते हैं कि हमने जो सैंपल डेटा लिया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, वो पॉपुलेशन जैसा है या नहीं है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस हम पॉपुलेशन पैरामीटर को अज्यूम करते हैं और उसको प्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिटेल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। There are two type of hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis. Now what is null hypothesis? Denoted by H0. Null hypothesis denoted by H0 is usually the hypothesis that sample observation result purely from the chance. क्या लिखा है देखो, that researcher known, जो researcher जानता है ना already, जो proof हो चुका है उसको वो null में रखता है। और what is alternative hypothesis, नीचे पढ़ लो, that researcher don't know, रिसर्चर नहीं जानता है और जो रिसर्चर प्रूव करना चाहता है उसको वो H1 में रखता है। नीचे नल हाइपोथेसिस H0, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA भी लिख सकते हैं, H1 भी लिख सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट थियरी है, मैं आपको बाद में ये भी बता दूंगा कि कौन सी थियरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है काफी बार, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट वर्ड सॉरी, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन, क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ चलो समझते हैं व्हाट इज नल हाइपोथेसिस इन डिटेल। तो स्टेट द अजम्पशन न्यूमेरिकल टू बी टेस्टेड, यहां पे लिखा है देखो, द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट इन द यूएस होम इज 3, एवरेज दैट इज म्यू इज इक्वल टू 3। तो हाइपोथेसिस म्यू का होता है, नीचे यहाँ पे देखो ये इतना ही समझा रहे हैं कि हाइपोथेसिस म्यू का हो सकता है, एक्स बार का कभी हाइपोथेसिस होता नहीं है। मतलब हाइपोथेसिस पॉपुलेशन पैरामीटर का होता है, दिस इज पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन मीन है ना, इसलिए इसको पॉपुलेशन पैरामीटर करते हैं, कभी सैंपल का हाइपोथेसिस होता नहीं है, क्लियर। नाउ नल हाइपोथेसिस अगेन, begin with the assumption that null hypothesis is true। ऐसा assumption के हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस कि भाई नल हाइपोथेसिस सही होगा, ठीक है। और ऑलवेज नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कंटेन इक्वल टू साइन, नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कौन सा साइन कंटेन करता है, इक्वल टू। और मे नॉट बी रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, वो हम कैलकुलेशन के आधार पे डिसाइड करते हैं कि नल एक्सेप्ट हुआ या अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इक्वल टू। Now, alternative hypothesis. So, alternative hypothesis, this is the point. Alternative hypothesis not equal to हो सकता है, less than हो सकता है, greater than हो सकता है, ठीक है। नल ऑलवेज इक्वल टू होता है, अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन पॉसिबल है, और वो भी मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इज जनरली द हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड बाय द रिसर्चर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो है जो रिसर्चर प्रूव करना चाहता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट थियरी, एक्सप्लेन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थियरी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों जो मैं आपको 4-5 आप समझाने वाला हूँ थियरी, वो सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेना इसको वीडियो लेक्चर से, ठीक है। सो व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अभी अगर आपको याद हो तो in lecture, in regular session, we discuss the sum of sample size। याद है सैंपल साइज? अभी सैंपल साइज में हमने एक z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कॉन्फिडेंट इंटरवल दिया होता था, याद है? 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल, 99% कॉन्फिडेंट इंटरवल, शायद 96 भी दिया हो सकता है, 98 भी दिया हो सकता है, 90% भी दिया होता है। तो ऐसे मैंने अलग अलग सम आपको समझाए थे, वी डिस्कस दैट सम, ठीक है। समझाते थे व्हाट इज 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल। ये 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल का मतलब ये है कि रिसर्चर बिलीव दैट द रिसर्च इज 95% करेक्ट। 95% confident interval means researcher believe that the research is 95% correct. So what is the error? 5%. What is the error? 95% correct. So what is the error? 5%. That error is shows by level of significance alpha. वो जो error है ना उसको alpha बोलते हैं। देखो 5%, 0.05 है कि नहीं? Suppose we assume कि our research is 99% correct, that is 99% कॉन्फिडेंट इंटरवल। चलो 99% कॉन्फिडेंट इंटरवल है तो एरर कितने परसेंट हुआ? 1%, 0.01।
चलो हम मानते हैं कि 90% हमारा रिसर्च सही है, तो एरर कितना हुआ 10%, तो 0.10। तो एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा यूज होता है। ठीक है, अभी समझो एरर क्यों होता है। तो कोई भी रिसर्च हम करते हैं सैंपल लेके, उसमें एरर होता ही है। वो एरर को रिमूव करने के लिए, वो एरर को दूर करने के लिए अल्फा लिया जाता है रिसर्च में। क्या लिया जाता है? अल्फा। ये आपको सब में दिया होगा कि कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। क्या दिया होगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, उसका एक और दूसरा नाम है जो हम बाद में समझेंगे, क्लियर। और उसको अल्फा भी बोल सकते हैं। तो अल्फा शोज दी एरर। अल्फा क्या बताता है? एरर। और वो कुछ भी हो सकता है, 1% एरर हो सकता है, 5% हो सकता है, 10%। ये रिसर्चर पे डिपेंड है कि रिसर्चर को कितना एरर लगता है रिसर्च में, वो खुद अज्यूम करता है। लेकिन 90% रिसर्च में 90% रिसर्च में 5% एरर होता है। कितना एरर होता है? 5%। क्लियर? चलो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। ये जो मैं थियरी आपको समझा रहा हूं, उसको बोलते हैं, ये थियरी को 3 तरह से वो लोग पूछ सकते हैं। लिखना है तो लिख सकते हो। ये थियरी को 3 तरह से वो लोग पूछ सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्शन रीजन, एक्सेप्टेड रीजन एंड रिजेक्टेड रीजन। थियरी नंबर 1, एक्सेप्टेड रीजन एंड रिजेक्टेड रीजन, ये भी पूछ सकते हैं। दूसरा, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट, ये भी पूछ सकते हैं। वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट, ये भी पूछ सकते हैं। और तीसरा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो अभी हमने समझा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये तीनों थियरी में यू हैव टू एक्सप्लेन दिस 3 डायग्राम। और अभी हमने जो अल्फा समझा, वो ये 3 डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो अभी मैं इसको समझाता हूँ कि suppose with this theory come in exam, you have to do this 3 diagram. चलो समझते हैं। अभी हाइपोथेसिस समझो, नल हाइपोथेसिस। फर्स्ट एग्जांपल, नल हाइपोथेसिस, म्यू इज इक्वल टू 3, अल्टरनेटिव म्यू लेस देन 3। सेकेंड एग्जांपल, म्यू इक्वल टू 3, म्यू ग्रेटर देन 3। थर्ड एग्जांपल, म्यू इक्वल टू 3, म्यू नॉट इक्वल टू 3। समझो, नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इक्वल टू होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। यस और नो? अभी समझो, मैंने आपको एक थियरी समझाई, वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट। अंदर एक लिखा है ना, वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट। अगर ध्यान से समझना, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लास्ट एग्जांपल देखो इसमें, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू है तो टू टेल आएगा। देखो, दोनों साइड रीजन ड्रॉ किया है, यहाँ पर दोनों साइड, ये जो रीजन है ना दोनों साइड, इसको रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजेक्शन रीजन। फिर से समझाता हूं, अगर ये टू टेल है, मतलब नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, तो ये टू टेल आएगा। टू टेल हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, टू टेल टेस्ट बोलते हैं, सॉरी, टू टेल टेस्ट। नॉट इक्वल टू है ना, तो दोनों साइड एरिया ड्रॉ करना है, दोनों साइड। देखो, इसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। और ये जो बीच में व्हाइट एरिया है ना, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेड रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? एक्सेप्टेड। मतलब अगर आपका वैल्यू ये दो एरिया में आया तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, नल। और अगर बीच वाले एक्सेप्टेड रीजन में आया तो एक्सेप्ट होगा। चलो वो जाने दो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगेन, नॉट इक्वल टू है तो दोनों साइड आपको एरिया ड्रॉ करना है, ये दोनों साइड को रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। देखो, इसको अल्फा बाय 2 दिया है, अल्फा बाय 2। आपको पता है अल्फा क्या बताता है? एरर बताता है। यस सुनो, अल्फा क्या बताता है? एरर। एरर मतलब रिजेक्शन रीजन। अल्फा क्या बताता है? एरर। एरर मतलब रिजेक्शन रीजन। अभी हमने यहाँ पे अल्फा बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि दोनों साइड एरर है ना, दोनों साइड एरर है, इसीलिए अल्फा को आधा करके लिखना पड़ेगा। मतलब अगर अल्फा 0.05 है, दैट इज 5% है, तो दोनों साइड डिवाइड करो तो 0.05 को 2 से डिवाइड करो तो 0.025 यहां पर और 0.025 यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए नॉट इक्वल टू है तो टू टेल टेस्ट बोलते हैं उसको। कौन सा टेस्ट बोलते हैं? टू टेल। थियरी पढ़ लेना नेक्स्ट टाइम समझ में, अगर सम समझना है तो। क्लियर? नाउ अगर ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड आएगा। देखो, रिजेक्शन रीजन ग्रेटर देन है तो रिजेक्शन रीजन कौन सी साइड पे आएगा? राइट हैंड साइड। ये रिजेक्शन रीजन है इतना, और ये पूरा एक्सेप्ट रीजन है। चलो, यहाँ पे अल्फा बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा। अगर अल्फा 0.05 है तो यहाँ पे 0.05 रख दो। यहाँ पे क्यों डिवाइड किया था? क्योंकि दो साइड एरर थी, तो अल्फा को दोनों साइड लिखना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड किया था। यहाँ पे तो एक ही साइड है तो अल्फा पूरा लिख दो। तो ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड, और ऊपर देखो लेस देन है तो कौन सी साइड एरर आएगा? कौन सी साइड रिजेक्शन रीजन आएगा? लेफ्ट हैंड साइड।
और ये पूरा राइट हैंड साइड एक्सेप्टेड रीजन होगा और यहाँ पर भी अल्फा आएगा। तो सिंपल, अगर नॉट इक्वल टू है तो दोनों साइड रिजेक्ट होगा, दैट इज टू टेल। ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड, लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट। ये ऊपर वाले दो को क्या बोलते हैं? वन टेल टेस्ट। क्लियर? और इसको अपर टेल बोलते हैं, इसको लोअर टेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है लास्ट में, इसको टू टेल बोलते हैं और ये दोनों को वन टेल बोलते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट थियरी दिस। और इस मैंने आपको एक और थियरी लिखवा है, एक्सेप्टेड रीजन एंड रिजेक्टेड रीजन। तो देखो, ये जो व्हाइट है ना, इसको एक्सेप्टेड रीजन बोलते हैं, और ये जो हाई कलर वाला है उसको रिजेक्टेड रीजन। इसमें ये एक्सेप्टेड है, ये रिजेक्टेड, इसमें ये एक्सेप्टेड और ये दोनों रिजेक्टेड है। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, चलो, नाउ स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस। क्या है? स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कैलकुलेटिंग द हाइपोथेसिस। अभी हाइपोथेसिस कैलकुलेट करने के स्टेप्स है। बेसिकली अगर आप 4 स्टेप से हाइपोथेसिस कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 स्टेप लिखना है तो लिख देना। स्टेप नंबर 1, हाइपोथेसिस, डिसाइड द हाइपोथेसिस। स्टेप नंबर 1, डिसाइड द हाइपोथेसिस। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द वैल्यू। स्टेप नंबर 2, calculate the value. Step number 3, table value. And step number 4, conclusion. Again I am repeating. Step number 1, decide the hypothesis. Step number 2, calculated value. Step number 4, table value. And step number 5, conclusion. Sorry, step number 4, conclusion. ये 4 स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम सम करेंगे ये 4 स्टेप को फॉलो करके सम करने वाले हैं। सो पे अटेंशन और इसको याद रखना। बुक में अगर आप आगे पढ़ेंगे जब फ्यूचर में हाइपोथेसिस, तो ये 8 स्टेप्स हाइपोथेसिस। अगर एग्जाम में पूछा कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो आपको ये 8 स्टेप्स लिखने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये 8 स्टेप फॉलो करना अभी ऑनलाइन लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज अगर इफ वी वर डिस्कसिंग इन क्लास, we can discuss 8 step hypothesis, but अभी हम 4 स्टेप से हाइपोथेसिस समझेंगे। आंसर सेम आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन में क्या है, यहाँ पे 8 स्टेप बनाते हैं वो लोग, वहां पे 4 स्टेप बनाते हैं। ठीक है, तो हम 4 स्टेप से करने वाले हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो आपको ये 8 समझेंगे। ठीक है, you have to explain this 8. Which is the first one? Establish the hypothesis. Second one, determine the appropriate statistical test. Third, type 1 error. 4, state of decision rule. 5, get the sample data. 6, calculated value. 7, statistical conclusion. And 8, manage the decision. If time permit in future in class, we'll discuss this 8 step. But for online lecture, we'll calculate the sum by using 4 step only. मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, 8 स्टेप की जगह पे 4 में शॉर्ट में हम सम करने वाले। शॉर्ट में मतलब करना तो वही है, स्टेप कम होंगे तो थोड़ा हमारा एक्सप्लेनेशन इजी हो जाएगा। क्लियर? चलो, नाउ लास्ट थियरी फॉर टुडे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थियरी। इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ध्यान से समझना, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है। अभी समझो, दिस इज द टेबल। अभी यहाँ पे क्या है? डू नॉट रिजेक्ट H0। यहाँ पे देखो, डू नॉट रिजेक्ट H0। ये डू नॉट रिजेक्ट मींस एक्सेप्ट H0, यस और नो। और यहाँ पे रिजेक्ट H0। याद रखना, दिस इज एक्सेप्ट H0 और दिस इज रिजेक्ट H0। यहाँ पे क्या है? H0 ट्रू है और यहाँ पे H0 क्या है? फॉल्स। देखो एरर कैसे होता है, 2 टाइप की एरर होती है, ये भी पूछा जाता है। चलो यहाँ पे समझो। अभी नाउ फर्स्ट कॉलम, H0 ट्रू है। ट्रू मतलब H0 मींस नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सही है और हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे बाजू में देखो, एक्सेप्ट करते हैं। डू नॉट रिजेक्ट मींस एक्सेप्ट ना। फिर से H0 सही है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। चलो, हमने कोई मिस्टेक किया, H0 ट्रू है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ट्रू है तो एक्सेप्ट ही करना चाहिए ना। तो नो एरर, इसको क्या बोलते हैं? नो एरर। लिखने की जरूरत नहीं, 1/α नहीं लिखेंगे चलेगा। नो एरर। देखो फिर से, H0 इज ट्रू, ट्रू था और हमने उसको क्या किया? एक्सेप्ट, तो सही किया ना। सो देयर इज नो एरर। यहां पे जाओ, H0 फॉल्स, गलत था, लेकिन यहाँ पे जाओ, हमने क्या किया? उसको एक्सेप्ट,
H0 सही था, बट हमने उसको क्या किया, एक्सेप्ट, मिस्टेक किया ना, तो मिस्टेक किया, उससे एरर क्रिएट होता है, वो एरर को बोलते हैं टाइप 2 एरर। क्या बोलते हैं, टाइप 2, मतलब बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा। फिर से देखो, H0 गलत था, बट हमने एक्सेप्ट किया, तो गलत था तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तो एरर हुआ ना, तो टाइप 2 एरर। अभी यहां पर देखो, ये वाला, ये नीचे वाला कॉलम, H0 ट्रू है, सही था, तो फिर भी हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। सही था तो फिर भी रिजेक्ट कर दिया, मिस्टेक किया ना, तो एरर हुआ। कौन सा एरर, टाइप 1 एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। याद आया, अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और लास्ट वन, H0 गलत था, ये वाला H0 गलत था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, सही किया, गलत था तो रिजेक्ट ही करना चाहिए था, तो एरर नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, तो दिस वे देयर आर टू टाइप ऑफ एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर डिनोटेड बाय अल्फा, टाइप 2 एरर डिनोटेड बाय बीटा। एक और चीज समझाता हूं, ध्यान से समझो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने एक थियरी समझा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अल्फा को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। अल्फा को क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 3 नाम है अल्फा के, टोटल अल्फा के 3 नाम है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक दिया हो सकता है। अल्फा डायरेक्टली लिखा होगा अल्फा, या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा होगा, या टाइप 1 एरर लिखा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अल्फा लिखा हो सकता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा हो सकता है, और टाइप 1 एरर भी लिखा हो सकता है। सम में अल्फा देना जरूरी है, क्योंकि विदाउट अल्फा हम सम नहीं कर सकते हाइपोथेसिस के। रियलिटी में अल्फा हमको अज्यूम करना होता है, अगर रियल हम रिसर्च करते हैं तो अल्फा 0.05 अज्यूम करके रिसर्च करता है। बट अगर ये एग्जाम की बात है तो एग्जाम में तो अल्फा आपको दिया ही होना चाहिए, समझ में आया, तो ही आप सम कर पाएंगे। क्लियर, सो दिस वे, दिस इज द थियरी for calculating the sum. Now let's revise the theory, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको खास याद रखने हैं, तो फिर से हाइपोथेसिस की थियरी पढ़ लेना, तो ही आपको सम समझ में आएगा, अदरवाइज सम समझना इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, अगर आपको थियरी समझ में आ गई तो सम इजी लगेगा आपको। क्लियर, चलो थोड़ा रिवाइज करते हैं। देयर आर, what is hypothesis? Hypothesis means we want to prove the population parameter. We want to prove the population parameter. Population parameter means what? Mu, p and sigma square, मतलब population mean, population proportion and population variance. ठीक है, there are two types of hypothesis, H1 that is null hypothesis, H0 that is null hypothesis, H1 that is alternative hypothesis. What is null hypothesis? Null hypothesis mean that researcher already known or already proved. null hypothesis क्या होता है, जो रिसर्चर ऑलरेडी जानता है और ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, जिससे, और null hypothesis को हम किससे डिनोट करते हैं, इक्वल टू। What is alternative hypothesis? Alternative hypothesis is that hypothesis that researcher want to prove, जो researcher prove करना चाहता है, और वो generally not equal to होता है, less than होता है, और greater than हो सकता है। Clear? Then we'll discuss level of significance. हमने क्या डिस्कस किया, level of significance. Level of significance shows the error. क्या बताता है ये, error बताता है, और rejection region बताता है। error भी बताता है, rejection region भी बताता है, और अल्फा कुछ भी हो सकता है, सम में 1% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, depends on some. Then we discuss rejection region and acceptance region, और we discuss the one tail test and two tail test. What is two tail? पता कैसे चलेगा two tail test है, तो अगर alternative hypothesis not equal to है तो दोनों साइड एरर आएगा, ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड रिजेक्शन रीजन आएगा, लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड रिजेक्शन रीजन आएगा। ये नीचे वाला टू टेल्स है, और ये ऊपर दो वाला वन टेल है, वन टेल में ये लोअर टेल है और ये अपर टेल है। क्लियर, देन वी डिस्कस टाइप this four step of hypothesis that we discuss in next lecture. इन एग्जाम सपोज हाइपोथेसिस स्टेप पूछे तो आपको ये 8 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। देन वी आल्सो डिस्कस टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर डिनोटेड बाय अल्फा एंड टाइप 2 एरर डिनोटेड बाय बीटा। अगर ये एग्जाम में पूछा तो आपको ये डायग्राम, ये टेबल ड्रॉ करना है और आपको नीचे समझाना है। क्लियर, चलो और एक चीज आपको लास्ट में समझा देता हूं।
नेक्स्ट टाइम व्हाट वी रिक्वायर फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम सम करेंगे हमारे लेक्चर में तो हमको क्या चाहिएगा, नंबर वन हमको चाहिएगा कैलकुलेटर, देन बुक नोटबुक, देन सम जरूरत नहीं है वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में रख दूंगा, देन आपको चाहिएगा जेड टेबल एंड टी टेबल। कौन सा टेबल चाहिएगा, जेड टेबल एंड टी टेबल। सो अगर आपके पास जेड बुक है तो इन दैट बुक जेड टेबल और टी टेबल ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो वो आपको सर्च करके रखना है लास्ट में कि जेड टेबल और टी टेबल कौन सा है, वो लास्ट नेक्स्ट टाइम चाहिएगा। Clear? So this is very important theory as far as exam and for calculation is concerned. I hope you understand this one. ठीक है? Here we